ठीक है, अब हम फोर्थ फीचर्स देखते हैं। ठीक है, पेज नंबर 35 स्टार्ट हो गया है यहाँ से। द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कंट्रोल्स द असेट्स ऑफ द डेटर ड्यूरिंग द इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस. The insolvency professional verifies the claims of the creditor, constitutes a committee of creditors, runs the debtor's business as a going concern during the moratorium period, and assists the creditors in finalizing the revival plan. He also ensures that the debtor is in compliance with all the laws applicable to it during the revival process. In liquidation, the insolvency professional acts as a liquidator and bankruptcy trustee. The Insolvency and Bankruptcy Board of India has framed the IBBI Regulation 2016 to regulate the working of the insolvency professionals. These regulations are amended from time to time by the Insolvency and Bankruptcy Board of India. सॉरी, तो ये जो पॉइंट नंबर 4 है, इसमें क्या बोला? सबसे पहले बताया गया कि ये जो इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस होगा आईबीसी के तहत में, उसमें क्या होगा कि जो भी कंट्रोल है बिजनेस का वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के पास चला जाएगा। वो मोराटोरियम पीरियड जो होगा वो क्या होगा वो आगे अपन देखेंगे। मोराटोरियम पीरियड में कोई भी स्यूर वगैरह नहीं कर सकता है कंपनी के ऊपर। ठीक है, तो वो अपन आगे देखेंगे, जो भी प्रोसीडिंग है वगैरह लीगल प्रोसीडिंग है वो सब स्टॉप हो जाती है वगैरह, जो भी आगे प्रोविजन आएंगे वो तभी देखेंगे। ठीक है, तो जो मोराटोरियम पीरियड होगा उसमें एज अ गोइंग कंसर्न है वो बिजनेस को चलाएगा। ठीक है, और अ, ये जो भी गवर्न होगा वो ये जो आईबीबीआई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रेगुलेशन है उनके तहत में ये पूरा का पूरा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है वो काम करेगा। ठीक है, टू रेगुलेट द वर्किंग ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया आईबीबीआई हैज फ्रेम्ड द फॉलोइंग रेगुलेशंस इन the exercise of the powers conferred by the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. The Insolvency and Bankruptcy Board of India Model Bylaws and Governing Board of Insolvency Professionals Agencies Regulation 2016 and the Insolvency and Bankruptcy Board of India Regulations 2016. While the insolvency professionals assist the insolvency resolution proceedings envisaged in the code, the information utilities on the other hand collect, authenticate, disseminate financial information. तो ये जो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी होगी वो क्या काम करेगी, अभी उसके बारे में फीचर बताया जा रहा है। तो वो क्या करेगी, जो भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करेगी, कोलेक्ट करेगी, ऑथेंटिकेट करेगी और उसे फिर डिसमिनेट करेगी। ठीक है, द पर्पस ऑफ सच कलेक्शन, कोलेक्शन, authorization and dissemination of the financial information of the debtors in centralized electronic databases is to facilitate swift decision making in the resolution proceeding. ठीक है, तो इसका पर्पस क्या होगा कि जो भी रिजोल्यूशन प्रोसीडिंग चल रहा है वो आसानी से हो जाए, स्विफ्ट डिसीजन मेकिंग हो। ठीक है, आसानी से डिसीजन लिया जा सके, ये जो काम है वो इस इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का होगा। ठीक है, द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया हैज फ्रेम्ड द आईबीबीआई इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज रेगुलेशन 2017. These regulations are amended from time to time by the Insolvency and Bankruptcy Board of India. The course provides for the constitution of a new insolvency regulator, that is Insolvency Bankruptcy Board of India (IBBI). Its role includes overseeing the functioning of the insolvency intermediaries, that is insolvency professionals, insolvency professional agencies, and information utilities, as well as regulating the insolvency process. The members of the board include representatives from the central government as well as RBI. The board is empowered to frame, implement regulations to regulate the profession as well as processes envisaged in the code. The Bankruptcy Board of India has also been designated as authority under the Companies Registered Valuers Valuations Rules 2017 for regulation and development of the profession of the valuers in the country. So, यहाँ पे क्या होगा कि ये जो कोड है उसमें इंसॉल्वेंसी रेगुलेटर के तहत आईबीबीआई को बनाया जाएगा। ठीक है, और जो भी वैल्यूएशन वगैरह का काम होगा उसके लिए जो कंपनी एक्ट में वैल्यूअर का जो बात की गई है वही लोग यहाँ पे वैल्यूएशन का काम करेंगे। ठीक है, द कोड proposes two tribunals to adjudicate insolvency resolution cases. क्या टू ट्रिब्यूनल बनाई जाएगी
जो भी केस होगा उसको रिजोल्व करने के लिए। इन द केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी एंड एलएलपी, द एडजुडिकेशन अथॉरिटी इज द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो इन शॉर्ट बॉडी कॉर्पोरेट जो भी है, मतलब कि कंपनी और एलएलपी, उनके लिए एनसीएलटी काम करेगी। और while the cases involving individuals and partnership firm are handled by the debts recovery tribunals, तो बाकी का जो भी काम है वो कौन करेगा, तो डीआरटी करेगी। ठीक है। The insolvency proceedings will be initiated by the NCLT or the DRT as the case may be after verification of the claims of the initiator. Appeals from the NCLT orders lies to the NCLT एंड देयर आफ्टर टू द सुप्रीम कोर्ट। तो अगर एनसीएलटी से आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप एनसीएलटी में जाओगे, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, और उसके बाद अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। ठीक है। फॉर इंडिविजुअल्स एंड अदर पर्सन द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज द डीआरटी। और इंडिविजुअल्स के लिए डीआरटी रहेगा, उसके ऊपर डीआरएटी आ जाएगा, मतलब कि डेब्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हो। टू एंश्योर दैट द इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन इज commercially viable, the court separates the commercial aspects from the judicial aspects and thus limits the role of the adjudicating authorities to ensuring due process rather than adjudicating on the matters of the insolvency resolution। तो अभी इसमें क्या होगा कि जैसे कोई कंपनी गई तो वो उसमें जुडिशियल एस्पेक्ट ही देखेगी, एनसीएलटी है, वो उसकी फाइनेंशियल आइटम्स जो भी है उसके अंदर नहीं जाएगी कि ये एसेट का वैल्यूएशन क्या होगा, वो उसकी मैटर ही नहीं है। आपने लो का कंप्लायंस किया कि नहीं, वो ही उसका काम है। ठीक है। तो एनसीएलटी आपकी ये जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट वाला काम है उसके अंदर बहुत ज्यादा नहीं जाएगी। वो जो भी क्या करेगी कि जो आपका जुडिशियल वाला काम है, या आपने जो भी कंप्लायंस करना था वो आपने किया कि नहीं किया, टाइम पे आपको जो भी नोटिस वगैरह देना था, जो भी प्रोनाउंसमेंट करनी थी, जो भी इंफॉर्मेशन डिसमिनेट करनी थी, जो भी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनानी थी, वो वगैरह सारे काम किए या नहीं किए। ठीक है। और जो भी प्रोसेस बताया गया है उसको फॉलो किया कि नहीं किया, वो चेक करना एनसीएलटी का काम रहेगा। ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। टू इनिशिएट द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस फॉर कॉर्पोरेट डेटर्स, द डिफॉल्ट शुड बी एट लीस्ट ऑफ 1 करोड़ रुपीज। दिस लिमिट was increased from 1 lakh to 1 crore by एमसी नोटिस dated 24 मार्च 2020। तो जब कोरोना आया उसके पहले इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के लिए लिमिट जो थी वो सिर्फ 1 लाख रुपए की थी, उसको बढ़ा के फिर 1 करोड़ रुपया कर दिया गया। क्योंकि तभी कोविड में लॉकडाउन आया तो काफी सारी कंपनी छोटे अमाउंट 1 करोड़ से कम का अमाउंट में भी पे ना कर पाए, तो वरना बहुत सारे केस आ जा सकते थे। और उस वक्त के दौरान फिर ये जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट था उसे सस्पेंड भी कर दिया गया था। मतलब कि उसमें कोई भी न्यू प्रोसीडिंग्स आप स्टार्ट नहीं कर सकते, उतना वो जो भी अपना पीरियड था वो आगे अपन देखेंगे। तो उस पीरियड के दौरान जो कोविड लॉकडाउन का पीरियड था उसके दौरान उतने टाइम के लिए वो एप्लीकेबल नहीं था। ठीक है। इन रिजोल्यूशन प्रोसेस फॉर कॉर्पोरेट पर्सन द कोर्ट प्रपोजेस टू इंडिपेंडेंट स्टेजेस। Insolvency resolution process during which the creditor assess the viability of the debtor's business and the option for its rescue and revival. Liquidation in the case the insolvency resolution process fails or financial creditors decide to wind up and distribute the assets of the debtor। तो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग है कॉर्पोरेट पर्सन की, वो दो स्टेज में होगी। सबसे पहले अगर कंपनी को बचाया जा सकता है, इंसॉल्वेंसी को रिजोल्व किया जा सकता है, उसे रिजोल्व करो। अगर वो नहीं हो सकता है तो फिर उनको लिक्विडेट या बाइंड अप कर दो। ठीक है। द कोड envisages two stages processes in case of insolvency resolution process for individuals unlimited partnership, fresh start process and insolvency resolution। तो ये जो इंडिविजुअल्स है, अनलिमिटेड पार्टनरशिप है, उनके लिए दो प्रोसेस बताई गई है, फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस एंड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन। द कोर्ट्स प्रोवाइड्स अ फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस फॉर इंडिविजुअल्स अंडर व्हिच they will be eligible for a debt waiver of up to rupees 35,000। The individual will be eligible for a waiver subject to certain limits prescribed under the code। Under the fresh start process, eligible debtors can apply to the debt recovery tribunal for discharge from their certain debts not exceeding a specified threshold, allowing them to start afresh। ठीक है। तो अगर इंडिविजुअल है वो अपना
डेप्ट है वो पे नहीं कर पाता है, सब्जेक्ट टू उसका जो डेप्ट है वो मैक्सिमम 35,000 होना चाहिए, तो वो फ्रेश स्टार्ट कर सकता है। इस केस में उसको कुछ भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, आफ्टर कंप्लाइंग सर्टेन कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय डीआरटी। ठीक है, तो जो डीआरटी है, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, वो जो भी प्रिस्क्राइब करेगी उसके हिसाब से ये प्रोसीडिंग्स होगी, वो अपन आगे देखेंगे। अभी ये सिर्फ फीचर्स ही अपन पढ़ रहे हैं, तो ठीक है, यहाँ पे फीचर्स का कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, बट ये एक आपको एक ओवरव्यू दे जाता है कि इसमें क्या क्या प्रोसीडिंग्स बताई गई है। ठीक है, तो इसलिए अपन पढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स फॉर अ डिफॉल्टेड फाइनेंशियल डेट और एन ऑपरेशनल क्रेडिटर फॉर एन अनपेड ऑपरेशनल डेट कैन इनिशिएट द इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन process against the corporate debtor. The defaulting corporate debtor, its shareholders or employees may also initiate voluntary insolvency proceedings. The NCLT is designated adjudicating authority in case of a corporate debtors. In case of individuals and unlimited partnership, the insolvency resolution process consists of preparation of a repayment plan by the debtor. If approved by the creditors, the DRT passes an order binding the debtor and creditors to the repayment plan. If the plan is rejected or fails, the debtor or creditor may apply for a bankruptcy order. ठीक है, तो जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है वो एक कमिटी बनाएगा, वो कमिटी है वो, सॉरी एक मिनट, तो जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है, ठीक है, और ऑपरेशनल क्रेडिटर है, वो मिलके एक कमिटी बनाएंगे, वो बाद में पूरा काम संभालेगी, वो अपन आगे देखेंगे। और वो क्या है कि डेटर के लिए रिपेमेंट प्लान मंगाएगी कि इसको अपन कैसे रिपेमेंट करा सकते हैं। ठीक है, ये बिजनेस चलेगा तो किस तरह से चलेगा वगैरह ये सब डिसाइड करेगी, और उसके रिगार्डिंग जो भी अप्रूवल होगा वो डीआरटी से ऑर्डर वगैरह पास कराएगी। और ये जो ऑर्डर पास होंगे वो सबके लिए एप्लीकेबल होंगे, वो एम्प्लॉय को भी एप्लीकेबल होगा, वो डेटर को भी एप्लीकेबल होगा, बाइंडिंग होगा, और क्रेडिटर को भी बाइंडिंग होगा। ठीक है, और अगर ये प्लान जो है वो फेल हो जाता है, वो काम नहीं करता है, तो उस केस में इंडिविजुअल होगा तो उसका बैंक्रप्सी हो जाएगा, और अगर कॉर्पोरेट होगा तो उसका वाइंडिंग अप किया जाएगा। ठीक है, अभी ये जो सेक्शन 11 है ना वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11, द फॉलोइंग पर्सन शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू मेक एन एप्लीकेशन टू इनिशिएट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस अंडर द चैप्टर 2 ऑफ द पार्ट 2 ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। तो कौन है वो एप्लीकेशन नहीं कर सकता? ठीक है, so a corporate debtor undergoing a corporate insolvency resolution process or a corporate debtor having completed corporate insolvency resolution process 12 months preceding the date of making of the application, or a corporate debtor or a financial creditor who has violated any of the terms of the resolution plan which was approved 12 months before the date of making an application under this chapter, or a corporate debtor in respect of whom liquidation order has been made. तो ये जो चार तरह के पर्सन होते हैं, सबसे पहला कि जो कॉर्पोरेट डेटर है, कि जो इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस जिसके अगेंस्ट में स्टार्ट हो गई है, वो आप इस जाके खुद को ही खुद के अगेंस्ट में प्रोसेस स्टार्ट नहीं करा सकता। ठीक है, दूसरा जो है कि जिसकी सीआईआरपी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है और 12 महीना कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो भी वापस जाके नए से प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर मतलब ये जो है ना वो खुद के अगेंस्ट में प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकता, वो बताया जाता है। अभी फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई कंपनी है, अपन पकड़ लेते किंगफिशर, किंगफिशर है, वो इंसॉल्वेंट हो गई, तो अगर उसे किसी से पैसा लेना है, ठीक है, तो वो सामने वाले के साथ ऊपर इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है, लेकिन खुद के वो अगेंस्ट में जाके नहीं कर सकता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे बताया जा रहा है, क्योंकि कंपनी के बारे में सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन किसके पास रहती है? उनके मैनेजमेंट के पास। तो उनको अगर लगता है कि हम अभी बिजनेस नहीं चला सकते, हमारा बिजनेस वो वायबल नहीं है, तो वो लोग खुद जाके भी सेक्शन 11 में जैसे बोला है वैसे खुद जाके भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कि हमें अभी इंसोल इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो। ठीक है, और हमारे अगेंस्ट में सीआईआरपी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दो। तो हमने तीन देखे थे, सबसे पहले कॉर्पोरेट डेटर है, वो जिसका ऑलरेडी इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है वो नहीं जा सकता है, जिसका कंप्लीट हो गया था और 12 महीने कंप्लीट नहीं हुए वो नहीं जा सकता है, वो वापस अप्लाई नहीं कर सकता है। फिर कोई ऐसा है कि कॉर्पोरेट डेटर और फाइनेंशियल क्रेडिटर हु हैज वायोलेटेड एनी ऑफ द टर्म्स ऑफ द रिजोल्यूशन प्लान, कि जिसने रिजोल्यूशन प्लान का जो टर्म्स है जो पहले अप्रूव किया था और उसका वायोलेशन किया है,
वो वापस जाके सीआईआरपी स्टार्ट नहीं करा सकता है। और अ कॉर्पोरेट डेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ whom लिक्विडेशन ऑर्डर हैज बीन पास, कि जिसका लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो गया है, उस वो भी वापस जाके सीआईआरपी प्रोसेस स्टार्ट नहीं करा सकता है खुद के सामने। ठीक है। उनके अलावा इसमें अमेंडमेंट है कि जिसका कुछ पीआईआरपी प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, वो भी वापस से एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं कर सकता है। तो वो अपन आगे जब पीआईआरपी पढ़ेंगे, पीआईआरपी जो पढ़ेंगे, उसमें जो अभी नया कंसेप्ट आया है, सेक्शन नंबर 54 में इंट्रोड्यूस हुआ है, वो जब अपन देखेंगे तभी अपन वहां पे देख लेंगे। ठीक है। It may be noted that a corporate debtor falling under the above clause can initiate corporate insolvency resolution process against another corporate debtor। ठीक है। तो ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि जो किंगफिशर है, अगर वो खुद इंसॉल्वेंट हो गई है और उसे किसी और से पैसा लेना है, तो वो उसकी अदर कंपनी है, उनके सामने तो वो केस फाइल कर सकती है, उनको सीआईआरपी उनके अगेंस्ट में इनिशिएट करा सकती है। ठीक है। The code provides for a time-bound insolvency resolution process for a companies and individuals, which is required to be completed within 180 days, subject to one-time extension by 90 days, and mandatorily to be completed within 330 days. So क्या होगा, 180 दिन में प्रोसेस कंप्लीट करना है। अगर एक्सटेंशन चाहिए तो 90 दिन का मिल जाएगा, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 330 डेज में पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। If the resolution plan does not get finalized or is rejected by the NCLT or DRT on a technical grounds, then the assets of the debtor are sold to repay his outstanding dues. अगर ये कंप्लीट नहीं होता है, प्लान अप्रूवल नहीं, फाइनलाइज ही नहीं हो पाता है, या तो फाइनलाइज हो गया लेकिन रिजेक्ट कर दिया डीआरटी ने। ठीक है। डीआरटी कब रिजेक्ट करेगी कि अगर मान लो कि वो पैसा पे नहीं कर रहा है, किसी क्रेडिटर का जो है ऑपरेशनल क्रेडिटर है या तो वर्कमैन है, कि जो जिनको पैसा मिलना चाहिए अगर उन्हें ही पैसा नहीं दे रहा है, ठीक है, तो उस केस में कंपनी है, सॉरी, एनसीएलटी है, वो उस ये जो प्लान जो भी दिया गया है उसको रिजेक्ट कर देती है, और जो कंपनी है उसका लिक्विडेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। द कोड मेक सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द प्रायोरिटी ऑफ द क्लेम्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लिक्विडेशन प्रोसेस। इन केस ऑफ अ लिक्विडेशन द असेट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या रहेगा? फीस ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंड सिक्योर्ड एंड द कॉस्ट रिलेटेड टू रिजोल्यूशन प्रोसेस। सबसे पहले तो जो रिजोल्यूशन का कॉस्ट है वो सबसे पहले चुकाया जाएगा। उसके बाद वर्कमैन का ड्यूस आएगा। ठीक है। कब तक का? तो लास्ट 24 मंथ्स का। ठीक है। फिर एम्प्लॉइज के वेजेस कुछ पेंडिंग रहेंगे तो वो चुकाया जाएगा। उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को दिया जाएगा। उनके बाद गवर्नमेंट ड्यूज को दिया जाएगा। ठीक है। तो पहले क्या होता था कि पहले जब लिक्विडेशन प्रोसेस आपने कभी पढ़ा होगा कंपनी सेक्ट वगैरह में, तो वहां पे गवर्नमेंट को पहले पैसे दे दिए जाते थे, एम्प्लॉइज के बाद में गवर्नमेंट को दिए जाते हैं। लेकिन अभी क्या है कि एम्प्लॉइज के बाद ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को दिए जाते हैं। ठीक है। और बाद में कुछ बचा तो उसको गवर्नमेंट को दिया जाता है। एंड रिमेनिंग सिक्योर क्रेडिटर्स, अगर सिक्योर क्रेडिटर्स ने सिक्योरिटी क्लेम कर लिया और अगर उनको भी कुछ पैसा बाकी दे रहना रह गया है, कि मान लो कि एक लोन दी गई थी किंगफिशर को 100 करोड़ की, उसके सामने 80 करोड़ की उसके पास कोलेटरल पड़ी थी, कोई असेट थी, तो वो उन्होंने बेच के 80 करोड़ ले लिए, तो अभी जो 20 करोड़ रुपया लेना बाकी है ना, वो ये गवर्नमेंट ड्यूज के साथ प्रोपोर्शनेट बेसिस पे उनको दिए जाएंगे। एनी रिमेनिंग डेप्ट एंड द शेयर होल्डर्स। ठीक है। बिफोर enactment of the insolvency bankruptcy code, the government dues were immediately below the claims of the secured creditors and in workmen in order to priority। ठीक है। पहले कहाँ पे होते थे? तो बिलो सिक्योर क्रेडिटर, तो ये जो सिक्योर क्रेडिटर है ना उसके बाद में थे, और एम्प्लॉइज वेजेस के साथ में थे। जो मैंने आपको बताया ना कि पहले क्या होता था कि ये जो गवर्नमेंट ड्यूज है ना उनको यहाँ पे लिया जाता था और उनको पहले पैसा मिलता था। लेकिन आईबीसी ने ये बोल दिया कि नहीं नहीं, बाकी लोगों को ज्यादा जरूरत है, गवर्नमेंट को बाद में पैसा मिलेगा तो चलेगा। बराबर ना? क्योंकि गवर्नमेंट को इतना सारा टैक्स मिल रहा है जबकि लोगों को टैक्स नहीं मिलता है। नाउ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ड्यूज stand below the claims of the secured creditor, workman dues, employee dues, and other unsecured financial creditors. The code provides for the creation of the insolvency bankruptcy fund। ठीक है। एक फंड बनाया जाएगा। Section 224 of the code provides that the following amount shall be credited to the fund: the grants made by the central government for the purpose of the fund, the amount deposited by a person contributed to the fund। कौन इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है? एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है, या तो कोई अदर पर्सन कर सकता है, और किसी और सोर्स से भी आ सकता है कि अगर मान लो कुछ पैसा पड़ा है तो ये लोग इन्वेस्ट कर देते हैं कहीं पे, जनरली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे, तो उसमें से कुछ इंटरेस्ट वगैरह आया
तो वो भी इस फंड में आ सकता है, तो अदर सोर्सेज से पैसा आ सकता है। और इंटरेस्ट और एनी अदर इनकम रिसीव्ड आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट मेड आउट ऑफ द फंड, वो तो मैंने पहले ही बोल दिया। ठीक है, तो ये तीन जगह से आ सकता है, या तो गवर्नमेंट है वो ग्रांट के रूप में देगी, दूसरा है वो कोई पर्सन है वो डिपॉजिट कर सकता है। ठीक है, एनी अदर सोर्स से पैसा आ सकता है, और इंटरेस्ट वगैरह से मिल सकता है। सेक्शन 224(3) फर्दर प्रोवाइड्स दैट अ पर्सन हु हैज कंट्रीब्यूटेड एनी अमाउंट to the fund may, in the event of proceeding initiated in respect of such a person under the code,